Welcome guys. Let us start with MCQs on circular motion. So first MCQ is a particle is moving on a circular path of 10-meter radius at any instant of time. Its speed is 5 meter per second and the speed is increasing at a rate of 2 meter per second square. At this instant the magnitude of net acceleration will be. So what is given? R is given 10 meter. At speed is given at the instant of time, मतलब instantaneous speed दिया है at specific time which is equal to 5 meter per second. Speed is increasing at a rate of 2 meter per second square. So what is rate of change of speed? What is rate of change of speed? dv by dt, it is nothing but tangential acceleration which is 2 meter per second square. So what is asked? A net. A net is equal to AR square plus AT square. So I know AT, but how to find AR? So radial acceleration or centripetal acceleration equal to V square upon R. I know V square. So 5 square and arrow radius upon 10, which will be equal to 2.5 meter per second square. So let's put all the values here. 2.5 bracket square plus 2 square. From this I will get n8, which will be equal to 3.2 meter per second square. So option A. Correct answer will be option A. So I'm not going to perform all calculations because time taken for the calculations can be used to solve more problems. So when I get to steps like this, I am not going to square and then add and then took square root using logbook or what is given. I am directly going to write the answers because I have already calculated the answers. So why I am doing this? So it will save the time, and you know how to do these calculations. So there is no need me to teach you to how to do arithmetic calculations like this. Rather than this, we can use that time on more MCQs. So let's move to the second MCQ. A point on a rim of a flywheel has a peripheral speed of 10 meter per second at an instant when it is decreasing at the rate of 60 meter per second square. If the magnitude of total acceleration of point at this instant is 100 meter per second square, the radius of flywheel is. So what is given? If this is my flywheel, then peripheral velocity is nothing but the tangential velocity of the part of the point on a rim, because peripheral of flywheel is nothing but circumference of the circle. So v is equal to 10 meter per second square per meter second. Now it is what is speed is decreasing at the rate of 60 meter per second square. So again I have been given dv by dt, which is equal to tangential acceleration, which is equal to minus 60 meter per second square. Why minus? Because speed is decreasing, so this will be deceleration. So net acceleration, total acceleration का magnitude दिया है. So net acceleration will be square root of ar square plus at square. If I take square on both sides,
it will turn into a net square equal to ar square plus at square. If I put value of a net, which is 100 square equal to ar square plus minus 60 square, I will get value of radial or centripetal acceleration from here, which is equal to 80 meter per second square. So I know v, I have to find radius. So I have relation between radial acceleration and radius and speed, which is equal to ar acp equal to, or ar equal to v square by r. If I put value of ar v, then I will get r equal to 1.25 meter. So my answer is option A. My answer is option A. So let's move on to the third one. A particle is moving on a circular track of radius 30 centimeter with a constant speed of 6 meter per second. Its acceleration is. So this is actually very easy question. But why I have given this question? Because if you are in a hurry and you only read this constant speed, you might pick option A, which is zero acceleration. But if a particle is going in circular motion, there is going to be an acceleration, even if acceleration will be non-zero, even if speed is constant. Because for circular motion to happen, there should be centripetal force or centripetal acceleration. ये बाप है, ये बाप है, तो इसकी वजह से ही ये बेटा हो सकता है. सो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो dv by dt, दैट मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, बट ACP जीरो नहीं होगा. वो क्या होगा? v स्क्वायर बाय r होगा. v दिया है 6, रेडियस दिया है 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.3 मीटर. सो इट विल बी इक्वल टू 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड नाउ at जीरो है, इसलिए a नेट और नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू acp, which will be equal to 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. सो मोशन क्या है पढ़ो. अगर लीनियर मोशन होता एंड कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली जीरो आएगा. बट सर्कुलर ट्रैक है एंड स्पीड कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो आएगा. बट ACP will never be zero in circular motion, because even if speed is वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, direction is always changing or ever changing in circular motion. And as acceleration is vector and velocity is vector, even if magnitude is constant and direction is changing, that means total vector is changing. So if a total vector of velocity is changing, then rate of change of velocity is there. So there will be acceleration, which will be centripetal acceleration. So read question carefully and then only solve your question. So let's take fourth one. In case of uniform circular motion, velocity and acceleration are. So मैंने ये सर्कल लिया और लेट्स अज्यूम दैट ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. तो अगर ये हमारा सेंटर है, तो अलोंग द रेडियस मेरा
Along the radius, I will get radial or centripetal acceleration, and along the tangent, along the tangent, I will get AT, and this will be my ACP or AR. And I will also get velocity, which is tangential speed or tangential velocity along the tangent, which will be V. So if there is AT present, then using the law of parallelogram, my net acceleration will be at this. This will be my net acceleration, and this will be at some angle theta with V, and theta here is not 90 degree, or theta here is not 180 degree. Now in uniform circular motion, in UCM, speed is 0, so AT, which is dV by dt, is equal to 0. So in UCM, there will not be any tangential component of acceleration. There will be only velocity and centripetal acceleration or radial acceleration, which will be equal to a net. And here radius and tangent are always perpendicular. So in UCM, as velocity is tangential and net acceleration, which is equal to centripetal acceleration, which is along radius and tangent are perpendicular. So velocity and acceleration will be also perpendicular. So let's move to the next one. Let AR and AT represent radial and tangential accelerations. The motion of particle may be circular if. तो मैंने ये बहुत बार बताया है आपको. I have told you many times that to circular motion to happen, there should be AR or ACP. That means this should not be 0. यहाँ AT and AR दिया है. AT may be 0. So ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां AR नॉन जीरो है? There is only option C. So option C, AR is non-zero and AT is 0. That means this is UCM, uniform circular motion, because speed is constant. So my correct answer is option C. The ratio of angular speed of minute hand and hour hand of a watch is. तो एंगुलर स्पीड का रेशो निकालना है. सो मिनट हैंड का. सो ओमेगा मिनट will be equal to 2 pi, और मिनट हैंड को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 60 मिनट लगते हैं. तो आई कैन पुट 60. तो दिस विल बी रेडियन पर मिनट. सो यहाँ रेशो निकालना है, तो मिनट सेकंड लेने के वजह मैं मिनट ले सकता हूँ, क्योंकि वी आर चेंजिंग दैट क्वांटिटी बाय मल्टीप्लाइंग इट. सो वो कट हो जाएगा. सो दिस इज, एंड व्हाट इज स्पीड ऑफ आवर हैंड? एक रिवोल्यूशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहेगा 2 पाई, एंड
12 आवर्स लगते हैं एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए आवर हैंड को. सो इट विल बी 12 इंटू 60. 12 आवर को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया. एक घंटे में 60 मिनट्स होता है, तो ये क्या होगा, रेडियन पर मिनट. तो क्या पूछा है, रेशियो मिनट हैंड टू आवर हैंड. तो ये इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ 1:12 लिखा है, 12:1, 6:1, मतलब रेशियो ऊपर नीचे दिए है, ऊपर नीचे दिए है. तो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रेशियो पूछा है. रेशियो पूछा है ओमेगा मिनिमम मीन, ओमेगा मीन upon omega r, omega minute upon omega hour hand. So here if I put all this, 2 pi will get cancelled, 60 will get cancelled, and I will get 1 upon 12. Denominator of denominator will go to the numerator. So I will get 12 upon 1. So my ratio is 12:1. So my answer is option C. So next, a particle moves with a speed v along a circular path of radius r, completes the circle in time t. The acceleration of particle is. So v दिया है, एंगुलर स्पीड दिया है, रेडियस दिया है एंड टाइम पीरियड दिया है, एंड एक्सेलरेशन पूछा है. देखो एज अ फंक्शन ऑफ टी पूछा है, एज अ फंक्शन ऑफ टी पूछा है. सो रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितने, ओमेगा वी एक फॉर्मूला है, वी स्क्वेयर आर है और आर ओमेगा स्क्वेयर है. तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एसीपी इक्वल टू ओमेगा वी, ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड विच इज 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी into v. So my acceleration will be 2 pi v by t. Here speed is, ACP is, here speed is constant. So dv by dt which is equal to at will be 0. So a net will be equal to ACP which will be equal to 2 pi v upon t. So my correct option is option A. जब एक्सेलरेशन पूछा है, सिर्फ एक्सेलरेशन वर्ड यूज किया है, तो नेट एक्सेलरेशन फाउंड करना. यू हैव टू फाइंड अ नेट एक्सेलरेशन. तो गड़बड़ नहीं करने की और एसीपी की वैल्यू नहीं लिखने की, क्योंकि वहां होगा. यहाँ अब कांस्टेंट स्पीड है इसलिए इट इज 0 आया एंड ए नेट एसीपी ही रह गया. तो यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, बट एग्जाम के टाइम में हरी में एकदम एसीपी की वैल्यू आ गई आपकी, और वो डायरेक्टली मत टिक कर देना, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए एसीपी एंड एटी की दोनों की वैल्यू ऑप्शन में हो सकती है एंड ए नेट की भी होगी. क्या पूछा है ये पहले ठीक से पढ़िए. सिर्फ द एक्सेलरेशन पूछा है तो नेट एक्सेलरेशन, अगर कुछ और पूछा है तो वैसे वो मेंशन करेंगे. So next, let's move on to the next one. The circular orbit of two satellites have radii R1 and R2 respectively, where R1 is less than R2. If angular velocities of satellites are same, their centripetal acceleration are related as. तो R दिया, R1 R2 दिया है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 सेम दिया है. तो रेडियल एक्सेलरेशन का ये दोनों के टर्म में कौन सा फॉर्मूला है, आर ओमेगा स्क्वेयर है, आर ओमेगा स्क्वेयर है. एंड इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, my AR will change with, will be proportional to R. So if R1 is less than R2, then my A1 will be also less than A2. So my correct option is C. Next one. A particle moves in a circular path of radius R with an angular velocity equal to A equal to B, A minus BT.
where a and b are positive constant and t is time, the magnitude of acceleration of the particle after time 2a upon b is. तो क्या दिया है, क्या दिया है, ओमेगा दिया है विच इज फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू ए माइनस बी टी. तो अल्फा विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और इसको हम मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो आई विल गेट माइनस बी, सॉरी माइनस बी which will be equal to meter per second square, radian per, sorry, which will be in radian per meter second square. So from this I will get, from this I will get, I know relation between AT and angular velocity, tangential acceleration and tangential and angular acceleration. So it is R alpha, R alpha. So my R is capital R and my alpha is minus B. So AT will be minus RB. So next, what is the value of AR in terms of omega? It is nothing but R omega. तो ओमेगा निकालते हैं at t equal to 2a upon b. Omega will be a minus 2a upon b into b. So my omega will be, b will get cancelled, minus a radian per second. So यहाँ से ए आर निकलेगा माइनस आर ए. तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब ए नेट निकालना पड़ेगा which will be equal to ar square plus at square. So let's put values, minus ra square plus minus rb square. ये माइनस आर कॉमन निकालो, माइनस आर का स्क्वायर आर स्क्वायर होगा. एंड इफ आई टेक दिस, just a second, just a second. So my value of omega is minus a, and this is r omega square. So my radial acceleration will be minus r a square, minus r a square. So this will be square. So r common nikalo, and my answer will be a raised to 4 plus b square, which is option D. ये ध्यान रखो, स्क्वायर लिखना भूल गया था. A car wheel is rotating to uniform acceleration about its axis. Initially, its angular velocity is 0. It rotates through an angle theta 1 in first 2 seconds. In next 2 seconds, it rotates through an extra angle of theta 2, और रेशो पूछा है theta 2 upon theta 1. सो क्या दिया है इनिशियली, ओमेगा 0, ओमेगा ओरिजिनल 0 दिया है. तो मेरा सेकंड इक्वेशन होगा जो एंगुलर मोशन का, थीटा इक्वल टू यू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर. अगर ये दिया है तो मेरा ये ओमेगा 0 है, ओमेगा 0 है, तो मेरा थीटा होगा हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वेयर. एंड इफ अल्फा इज कांस्टेंट, then my theta will be proportional to t square. अब गिवन क्या दिया है, at t equal to 2 second थीटा इज थीटा 1. आगे ठीक से पढ़िए, इन नेक्स्ट 2 सेकंड मतलब at t equal to 2 plus 2 4 second थीटा इज एडिशनल एंगल थीटा 2. दैट मींस थीटा 1 प्लस थीटा 2 लेना पड़ेगा. ठीक से पढ़िए. नाउ
if I take the ratio theta 1 plus theta 2 upon theta, which will be equal to 4 upon 2, theta 1, this will be equal to 2 by 1. अगर मैं इसको रेशो का ये करूं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू ये स्क्वेयर है तो ये 4 होगा, 4k एंड थीटा 1 इक्वल टू 1k। तो यहाँ से मिलेगा मुझे यूजिंग दिस थीटा 2 इक्वल टू 3k। तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 मैंने किया, 3k अपॉन 1k होगा, which will be equal to 3 upon 1, which will be equal to 3. So my ratio is 3, which is option C. चलो नेक्स्ट लेते हैं। If mass, speed and radius of the circle of a particle moving uniformly in a circular path are increased by 50%, the necessary force required to maintain the body moving in a circular path will have to be increased by. So mass, speed and radius है वो 50% से इंक्रीज किए हैं, मतलब न्यू m होगा 1.5 m, बिकॉज 100% प्लस 50% क्या होगा 1.5 m होगा। न्यू v होगा 1.5 v, न्यू रेडियस होगा 1.5 r। और फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन बॉडी इन सर्कुलर पाथ क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स है। तो एफसीपी का फॉर्मूला का है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो अब न्यू एफसीपी क्या होगा 1.5 m 1.5 v स्क्वेयर अपॉन 1.5 आर। तो अगर ये कैलकुलेट किया तो मुझे मिलेगा 2.25 of mv square upon r, which will be equal to old 2.25 fcp। अगर 2.25 मिला है तो देखिए क्या पूछा है, इंक्रीज्ड बाय पूछा है। तो इसका परसेंटेज में करने के बाद 225% होगा और इसमें से हमें 100% माइनस करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि ये 125% से इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे हमने यहां देखा कि 50% इंक्रीज हो गया, तो 100 में हमने क्या किया 50% इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ 250 कब मिलेगा हमें, जब 100 में हम 125 ऐड कर देंगे तो मिलेगा। तो ये क्या है 125% से इंक्रीज हुआ तो हमें ये न्यू सीपी मिलेगा। तो इंक्रीज देखो यहाँ 225% का भी ऑप्शन है, बट वो गलत है। अगर क्वेश्चन ऐसा हुआ कि नेसेसरी फोर्स विल बी दिस परसेंट ऑफ ओरिजिनल फोर्स, तो 225 होगा, बट यहाँ इंक्रीज दिया है, यहाँ रेशियो नहीं पूछा। अगर रेशियो पूछा होता तो 225 आता। क्वेश्चन 13, two particles of equal masses are revolving in a circular path of radii r1 and r2 with the same speed. Ratio of their centripetal force will be, so centripetal force is equal to mv square by r, क्योंकि स्पीड का टर्म दिया है। तो m कांस्टेंट है, सेम है, स्पीड सेम है,
स्पीड सेम है, तो F will be inversely proportional to R. तो F1 अपॉन F2 होगा R2 अपॉन R1। तो मेरा ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, a particle of mass m is executing circular motion on a path of radius r. If p is a magnitude of linear momentum, radial force acting on a particle is. तो यूसीएम है, मास दिया है, रेडियस दिया है। रेडियल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या डेफिनेशन, क्या एक्सप्रेशन है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर है। अब मोमेंट पी क्या है, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, पी इज नथिंग बट एम वी, एम वी। सो वी विल बी इक्वल टू पी बाय एम। ये मैं यहां डालता हूं, तो माई इक्वेशन ऑफ for F will be m upon r p by m square. So it will be p square upon mr or p square upon rm. So my correct option is option D. Next one, three identical particles are joined together by a thread as shown in figure. All the three particles are moving in horizontal plane. If the velocity of outermost particle is v0, the ratio of tension in this section of three sections of string is. तो क्या है, एक स्ट्रिंग है और उसको उस पे इक्विडिस्टेंट लेंथ पे पार्टिकल्स है ए बी एंड सी पे, ओ पे उसको टाई किया है एंड हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये मूव हो रहा है। तो ये क्या होगा, हर इस पे टेंशन होगा, हर स्ट्रिंग में टेंशन होगा। सो लेट ये पहले पार्ट में टेंशन T1 लेते हैं, दूसरे पार्ट में T2 लेते हैं एंड तीसरे पार्ट में T3 लेते हैं। एंड एज हॉरिजॉन्टल सर्कल कवर कर रहा है, इसलिए क्या होगा इसका टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो आउटर मोस्ट पार्टिकल का v0 दिया है, तो ए बी सी तीन पॉइंट पे v डिफरेंट होंगे, बट ओमेगा विल बी कांस्टेंट, ओमेगा विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द पॉइंट्स, बिकॉज अगर ये मूव हुआ, एक स्ट्रिंग मूव हुआ थीटा डिस्प्लेसमेंट से, सो स्ट्रिंग, तीनों स्ट्रिंग एज टेंशन की वजह से स्ट्रेट है, तो तीनों के O टू C तक सारे पॉइंट्स थीटा से मूव हो गए। तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो हम टेंशन इक्वल टू एपीसीपी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर पॉइंट सी, फॉर सी सिर्फ T3 है, T3 is acting as my centripetal force. So T3 will be equal to m r omega square. अब T3 के लिए क्या है r, L L L. So it is 3L. So it will be equal to m omega square into 3L. Now for B. अब B पॉइंट पे दो टेंशन लग रहे हैं T2 एंड T3। टूवर्ड्स जो सेंटर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो T2 माइनस
T3 will be equal to m r ओमेगा स्क्वायर. बी के लिए r कितना है 2l है, तो ये m ओमेगा स्क्वायर 2l हो जाएगा. अब फॉर ए T1 माइनस T2 होगा. T1 माइनस T2 इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. यहाँ आर क्या होगा, सिर्फ यल होगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल होगा. तो T3 का जो ये वैल्यू है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 3l, ये अगर मैं इस इक्वेशन में डाला तो मुझे T2 का वैल्यू मिलेगा विच विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 5l. और ये T2 का वैल्यू मैंने ये इक्वेशन में डाला तो मुझे T1 का वैल्यू मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 6l. तो T3 टू T2 टू T1 क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल तो क्या कांस्टेंट है, T3 के वैल्यू में क्या सिर्फ 3 है, दूसरा क्या है 5 है, तीसरा क्या है 6 है. तो 3 5 6 नहीं तो 6 5 3 आंसर रहता, क्योंकि मेंशन नहीं किया है कि कौन सी डायरेक्शन में लेना है. तो दोनों में से कौन, दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं क्योंकि मेंशन नहीं किया है. T1 एस टू T2 एस टू T3 लेना है या T3 एस टू T2 एस टू T1 लेना है. तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है विच इज डी. तो आंसर होगा डी. चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं. A spare is suspended by thread of length L. What minimum horizontal velocity has to imparted to ball to for it to reach the height of suspension. देखो अब VCM का एग्जाम्पल आ गया. सर्कल है और हाइट क्या चाहिए, हाइट ऑफ सस्पेंशन की हाइट चाहिए. मतलब अगर यहां सस्पेंड किया है, यहां से सस्पेंड किया है पार्टिकल और यहां, तो इसका अगर लेंथ L है, इसका अगर लेंथ L है तो L हाइट पे राइज होना चाहिए पेन पार्टिकल. दैट मींस हॉरिजॉन्टल आना चाहिए. मतलब ये क्या है, H इज इक्वल टू आर की कंडीशन है, H इज इक्वल टू आर की कंडीशन है और यहाँ हमने आर एल लिया है तो H इज इक्वल टू एल की कंडीशन है. तो हमें कुछ तो what should be u so it reaches at this position. तो आप डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, एनर्जी बैलेंस लगा सकते हैं. अगर ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है तो आप क्या कर सकते हैं, टीई एट ए इक्वल टू टीई एट बी. अगर क्या क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल हाइट तक ही पहुंचना चाहिए. मतलब हॉरिजॉन्टल हाइट तक पहुंचने के बाद वो रुकना चाहिए. ये एंगल 90 डिग्री है एंड अगर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो ये कंडीशन फॉर ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन होता है. तो इसको हम, तो फिर एट बी वी क्या होगा, 0 होगा. याद करो. तो यहाँ एट ए पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी. तो हाफ ऑफ एम यू स्क्वेयर इक्वल टू एम जी एच
अपना एच क्या है, यल है, तो यहां से हमें यू की वैल्यू मिलेगी, यू की वैल्यू मिलेगी रूट जी एल, रूट टू जी एल। आप ये यूज कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा क्या यूज कर सकते हैं। हम्म, हमारे जो वो फॉर्मूला था H इक्वल टू एल तो दिया है, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2GH, ये सेकंड फॉर्मूला था। अब ये तो यहां भी निकालना पड़ेगा। वहां तक जाना चाहिए, मतलब उसके आगे नहीं जाना चाहिए, और 90 डिग्री तक अगर जाएगा तो ऑसिलेशन का केस होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगी, तो v इक्वल टू जीरो होगी, तो u इक्वल टू रूट 2 GH होगा, विच विल बी इक्वल टू रूट 2 GL, क्योंकि h इक्वल टू l। देखिए मैं एक इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, वो और पॉइंट ए एंड पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कुछ भी लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, कुछ भी है, बट एट वन पॉइंट there is only kinetic energy, and at other point there is only potential energy, that means at that position v क्या होगा, जीरो होगा, और जहां ओनली काइनेटिक एनर्जी है वहां एच जीरो होगा। तो ऐसा अज्यूम करते हैं कि ए पे सिर्फ के ई है, मतलब एच जीरो है, एंड बी पे बी पे वी जीरो है, मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो ऐसे केस में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, टीई एट टीई एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी करेंगे। हम्म, और फिर आप हाफ ऑफ एम वी ए स्क्वेयर करेंगे सिर्फ यहाँ, क्योंकि ये जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाएगी, एंड बी पे भी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी जीरो हो जाएगी, तो आप इक्वल टू इक्वल टू एम जी एच होगा। तो v का वैल्यू यहां से आएगा रूट 2 GH। तो ये आपको बहुत जगह पे दिखने को मिलेगा कि अगर आपके पास एमसीक्यूज के या पीवाईक्यूज के बुक है और उसमें हिंट्स में देखा, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज किया रहता है, क्योंकि ये बहुत बहुत जगह यूज होता है एमसीक्यूज में। तो ऐसा अगर कोई कंडीशन हुआ, तो यहाँ देखिए अपना ये पॉइंट है, यहाँ एच जीरो है, वी नॉन जीरो है, तो यहाँ सिर्फ के ई होगी, के नॉन जीरो होगी, पीई जीरो होगी। तो यहाँ बी पे केस ऑसिलेशन का है, एच नॉन जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी एंड पीई नॉन जीरो होगी। तो यहाँ आप ये डायरेक्टली आप v इज इक्वल टू रूट 2 GH का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो ऐसी जगह पे। तो यहाँ डायरेक्टली v का फॉर्मूला आएगा रूट 2 GL, और आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे वेलोसिटी है वो तो निकालनी है, तो v इक्वल टू रूट 2 GH हो जाएगा, h क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट वन।
A particle is moving in a vertical circle. The tension in string when passing through two positions at angle 30 degree and 60 degree from vertical, which is at lowest position, are T1 and T2 respectively. Then relation between T1 and T2 पूछा है. तो एक सर्कल है, हाँ, वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है स्ट्रिंग, और दो पोजीशन दिए हैं, एक 30 डिग्री पे एंड एक 60 डिग्री पे, और ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन हो गया. तो ये 30 डिग्री हुआ और ये 60 डिग्री हुआ, एंड ये T1 है एंड ये T2 है. तो आप यह T माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन है, ये यूज कर सकते हैं. बट रादर देन दैट आई विल सजेस्ट कि आप ये एग्जांपल कंसेप्चुअली सॉल्व कीजिए. अगर यहाँ नीचे पार्टिकल है तो एम जी का कंपोनेंट पूरा नीचे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, टेंशन वर्टिकली अपवर्ड होगा. और हमने अपवर्ड पोजीशन का भी देखा है, टी डायरेक्टली डाउनवर्ड होता है एंड एमजी भी डायरेक्टली डाउनवर्ड होता है. तो यहाँ देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ weight which is acting in opposite direction of tension to create the tension. तो यह टेंशन लोएस्ट पोजीशन पे मैक्स होता है और यह मिनिमम होता है. हमने ये लिया भी था. अगर यू रूट 5 हुआ तो ये बी पॉइंट है, अपर मोस्ट और ए पॉइंट है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू है. तो टेंशन एट बी का लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा एंड टेंशन एट ए 6 mg होगा. तो यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर जाते टाइम ये कम होते जा रहा है, टेंशन इज डिक्रीजिंग, और फिर वापस आते टाइम टेंशन इंक्रीज हो रहा है. तो 30 एंड 60 डिग्री में 60 डिग्री का जो T2 है वो वर्टिकल पोजीशन में अपवर्ड है 30 डिग्री से. So just by thinking, by not using this equation, I can say T2 is greater than T1. तो आप हर क्वेश्चन प्रूव मत करते बैठिए. अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, अ सिंपल पेंडुलम of length L has maximum angular displacement of theta. The maximum kinetic energy of the bob of mass m will be. देखिए वापस वही, अब H इक्वल टू L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा तो लेना पड़ेगा. V स्क्वेयर इक्वल टू U स्क्वेयर माइनस 2GH. अब सिंपल पेंडुलम है तो एट थीटा 0 इक्वल टू थीटा दिया है, वहां V क्या होगा, 0 होगा. तो U क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का वेलोसिटी है. तो मैक्सिमम पेंडुलम में, इन पेंडुलम इन VCM और इन VCM in general, वेलोसिटी मैक्स क्या होती है, इज एट इक्विलिब्रियम और लोअर मोस्ट पॉइंट. तो इक्विलिब्रियम है तो V 0 होगा. तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि V इक्वल टू रूट 2GH है.
विच इज एट बॉटम मोस्ट पोजिशन, लोअर मोस्ट पोजिशन के इक्विलिब्रियम में होगा, u इक्वल टू डायरेक्टली मैंने ये जो बताया था नेक्स्ट इसमें ये में आप ये भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेंडुलम का केस एक्सक्यूज मी, पेंडुलम का केस ऐसा है कि एक एक्सट्रीम पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, v जीरो है, सो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे v जीरो है एंड देयर इज वेलोसिटी विच इज मैक्सिमम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। तो के ई मैक्स का क्या होगा, हाफ ऑफ यम यू स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू डालिए, हाफ ऑफ m इंटू टू जी एच, टू टू कैंसिल होगा, एम जी एच होगा, तो h का वैल्यू डालिए यहाँ से, तो क्या होगा, एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, small ball is pushed from a height of h along a smooth hemispherical ball of radius r, with what speed should the ball be pushed so that it reaches the top of opposite end? So once again, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, मतलब दिस इज सो, और पार्टिकल इनसाइड है, क्या किस लोकेशन पे है, या यहाँ रेस्ट पे है, विच इज फ्रॉम सम एच हाइट, और या ये क्या है, उसका इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से u से हमें इंपार्ट करना है, तो यहाँ जाके पहुंचना चाहिए, यहाँ जाके पार्टिकल पहुंचना चाहिए। तो मोशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड अ सर्कुलर शेल इज, ये ये क्या है, स्ट्रिंग को एक पार्टिकल टाई किया है एंड वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है, हम सेम यूज करते हैं, कर सकते हैं, सेम यूज कर सकते हैं। अगर ये h है और हेमिस्फेरिकल है, तो ये क्या होगा, ये r होगा, तो ये दो पोजीशन में जो डिस्टेंस होगा वो r माइनस एच होगा, r माइनस एच होगा। तो क्या करते हैं, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस टू जी एच लेते हैं, यह एच प्राइम लेंगे, ये एच प्राइम क्या है, आर माइनस एच है। तो यहां जाने के बाद यहाँ रीच होना चाहिए, मतलब यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये पॉइंट पे v क्या होगा, जीरो होगा, तो u क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टू जी एच प्राइम होगा। तो u का वैल्यू अगर मैंने h प्राइम का वैल्यू डाला टू जी इंटू आर माइनस एच, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। A frictionless track ABCDE ends in a circular loop of radius r. A body slides down the track from point A, which is at height h equal to 5 centimeter. Maximum value of r for a body to complete successful loop is. So for looping, डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि VB की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम रूट 5 RG होनी चाहिए, ये हमें पता है। तो पॉइंट ए एंड बिटवीन
पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एनर्जी कंजर्वेशन लेते हैं, टीई एट ए, सॉरी, टीई एट ए विल बी इक्वल टू टीई एट बी। पॉइंट ए पे एट द मोमेंट ऑफ स्टार्ट, छोड़ने के टाइम पे क्या होगा, वी ए जीरो होगा एट टी इक्वल टू जीरो, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो पीई एट ए होगा। एंड बी पे वर्टिकल हाइट जीरो है, एच एट बी जीरो, सो ओनली के ई होगा, के ई एट ए होगा। तो एम जी एच इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वेयर, तो एम एम कैंसल आउट हो जाएगा। तो वी बी स्क्वेयर का ये वैल्यू डालते हैं, ये वैल्यू डालते हैं, ये टू जी एच ए इक्वल टू 5 आर जी होगा, जी जी कैंसिल हो गया, 2 एच ए अपॉन 5 इक्वल टू आर होगा। एच ए का वैल्यू डालिए, एच ए का वैल्यू डालिए, क्या है 5 है, 2 इंटू 5 अपॉन 5 क्या हो गया, आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ए। अगर आपको ये पता है तो बाकी बहुत इजी है, हमने ये तो इतनी बार किया है, एनर्जी बैलेंस मैकेनिक्स का तो ये जान है, वन ऑफ द जान। जैसे वोल्डेमॉर्ट के हुक्रेक्सेस थे, वैसे ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिक्स का एक हुक्रेक्स है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंट ऑफ अदर अनदर हुक्रेक्स है, उसमें ही फोर्स बैलेंस एंड मोमेंट बैलेंस आता है। तो अगर ये आपको पता है कि कैसा करना है प्रॉपरली, तो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट जाएंगे नहीं, क्योंकि सर्कुलर मोशन का सिर्फ ये इंफॉर्मेशन यहाँ आया है, बाकी तो लॉज ऑफ मोशन में हमने ये सब किया है। चलो नेक्स्ट। A bullet of mass m moving with a horizontal velocity u strikes a stationary wooden block of mass capital M suspended by a string of length L equal to 50 centimeter. The bullet emerges out of the block with speed u by 4. The minimum value of u so that block can complete the vertical sphere. देखिए अगेन कंडीशन ऑफ लूपिंग है, फॉर लूपिंग u should be equal to, or u prime should be equal to 5 आर जी, आर दिया है 0.5 मीटर। बिफोर कोलिजन बुलेट है जो कि यू स्पीड से ब्लॉक की तरफ जा रही है, उसका मास एम है, इसका कैपिटल एम है, तो यहाँ यू प्राइम है, ये जीरो है। आफ्टर कोलिजन ब्लॉक को कुछ तो वेलोसिटी मिलेगा, और फॉर लूपिंग के लिए वो कितना चाहिए, √5 rg चाहिए, एंड बुलेट उसमें से निकल जाती है कितने स्पीड से, u/4 स्पीड से। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर सकते हैं या हम, तो क्या होगा, बिफोर बिफोर mu प्लस mu प्राइम इक्वल टू m इंटू u/4 प्लस कैपिटल M इंटू √5 rg, ये आफ्टर का है,
u प्राइम बिफोर कितना होगा, 0 होगा, तो आई कैन पुट दैट यम यू इक्वल टू यम यू बाय 4 प्लस एम एम इक्वल टू 6m दिया है तो वो पुट करते हैं 6m रूट 5 rg। तो ये मैंने सॉल्व किया, एम एम कैंसिल हो गया, हो जाएगा सब तरफ, और यू एक एक तरफ लिया, स्क्वायर लिया, आर का वैल्यू डाला, जी का वैल्यू डाला, 10 लेने को बोला है, तो मुझे यू मिलेगा 40 मीटर सेकंड। देखो वंस अगेन इट वाज वेरी इजी एग्जांपल, बुलेट ब्लॉक को हिट करता है, ऐसा एग्जांपल हमने लॉज ऑफ मोशन स्टडी करते टाइम लिया था। यहाँ सिर्फ क्या करना, ब्लॉक ने पूरा सर्कल कंप्लीट करना चाहिए। वहां क्या हो रहा था, ब्लॉक कुछ हाइट से ऊपर उठ रहा था, तो एच लेते थे हम और एनर्जी बैलेंस करते थे। यहाँ एनर्जी बैलेंस करके ही ये कंडीशन निकाली हमने, बट फॉर लूपिंग कंप्लीट करना चाहिए, इसलिए क्या है, ये ये कंडीशन डाल के हमने वापस वही किया है, सेम किया है। चलो लेट्स स्टॉप हियर, वी विल हैव वन मोर सेशन ऑफ एमसीक्यूज। अभी कुछ 10-12 ही बचे हैं, नेक्स्ट सेशन में लेंगे। अभी स्टॉप करते हैं, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ प्रोडक्टिव डे।